Good afternoon, my students. Today I will teach you industrial production estimation, utilization of fork scoline, sinusoids, artemisins, and diogenin. So here we are with fork scoline. What is the biological source of fork scoline? Labdan diterpenoid, labdan diterpenoid extracted from roots of Coleus forkscoli. Forkscolin belongs to family Lamiaceae. Belongs to family Lamiaceae. मीन्स forkscolin की जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है लैप्डेन डाइटरपेनॉइड. It is basically extracted from roots of Coleus forkscoli. Roots of Coleus forkscoli. It belongs to family Lamiaceae. किस फैमिली से बिलोंग होता है forkscolin? Lamiaceae. Forkscolin from Lamiaceae. This is the chemical structure of forkscolin. So here we are with the industrial production of forkscolin. तो forkscolin का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए forkscolin के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले रूट्स एंड बार्क पाउडर एक्सट्रैक्टेड विद टोल्यून. रूट्स एंड बार्क पाउडर एक्सट्रैक्टेड विद टोल्यून. टोल्यून से एक्सट्रैक्ट करेंगे एट टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 hours. Further, after extraction, filter out the solution through filtration and concentrated at temperature which is not exceeded about 40 degrees Celsius. After concentration जो extract अचीव होता है, that extract is further mixed with normal hexane, which further yields to produce crude forkscolin in the form of a brown precipitate. After the formation of a brown precipitate, जैसे ही brown precipitate का formation होता है, definitely this precipitate is further purified by using column chromatography. मीन्स forkscolin सबसे पहले अचीव करने के लिए रूट्स एंड बार्क पाउडर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए टोल्यून सॉल्वेंट फॉर 2 hours at temperature 60 degree Celsius. Further filtrate is collected. After the collection of a filtrate, concentrated at temperature not exceeding 40 degrees Celsius. After obtaining the concentrated extract, this concentrated extract is further mixed with normal hexane solvent. जैसे ही हम कंसनट्रेटेड एक्सट्रैक्ट को नॉर्मल हेक्सेन से मिक्स किया, देन फर्दर यील्ड्स टू प्रोड्यूस क्रूड forkscolin. और ये जो क्रूड forkscolin यील्ड हुआ है, ऑब्टेन हुआ है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए ब्राउन प्रेसिपिटेट. किस फॉर्म में है? ब्राउन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में. और जैसे ही ये ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ है, देन प्योरीफाइड दिस ब्राउन प्रेसिपिटेट बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी. बाय यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी.
Further, here we are with the estimation of Forquiscolin. How we will estimate Forquiscolin? By the help of TLC as well as HPTLC. तो TLC, HPTLC, mobile phase, solvent toluene and ethyl acetate, 8.5 ratio 1.5 volume by volume. मोबाइल फेज क्या होगा? टोल्यून एथाइल एसीटेट 8.5 1.5 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. स्टेशनरी फेज सिलिका जेल F254, सिलिका जेल F254 बेसिकली जो विजुअलाइजिंग एजेंट होगा इन केस ऑफ Forquiscolin, विजुअलाइजिंग एजेंट जिससे विजुअलाइज करेंगे, that will be 5% vanillin in glacial acetic acid. किस में होगा? ग्लेशियल एसिटिक एसिड में 5% vanillin in glacial acetic acid and 10% sulfuric acid in water. Further utilization, what are the utilizations, basic utilization of Forquiscolin? Uses and utilization of Forquiscolin. Antidepressant agent, as antidepressant agent, as a vasodilating agent, vasodilators, vasodilating agents, act as an anti-obesity agents, anti-obesity agent, obesity को काम करने वाला, रोकने वाला, इन ग्लाकोमा ऐसे एंटीहिस्टामिनिक एजेंट. मीन्स जब Forquiscolin की बात करते हैं, द बेसिक यूटिलाइजेशन ऑफ Forquiscolin इज एंटी डिप्रेसेंट. एंटी डिप्रेसेंट, डिप्रेशन कम होना है को कम करने के लिए Forquiscolin यूज कर सकते हैं. एंटी डिप्रेसेंट, वैसोडाइलेटर्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए वैसोडाइलेटिंग एजेंट, ऐसे एंटी ओबेसिटी एजेंट इन ग्लाकोमा एंड इन यूज ऐसे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स. यहाँ हियर सेनोसाइड्स. सो सेनोसाइड्स, biological source of senosides, the base dianthrone glycosides, leaflets of Cassia angustifolia and Cassia equitifolia. It belongs to family Leguminosae. देखिए, सेनोसाइड्स की बात करते हैं. सेनोसाइड, सुनो जी क्या हाल है, सुनो जी क्या हाल है. तो क्या हो गया? डायएंथ्रोन ग्लाइकोसाइड्स. सेनोसाइड्स क्या होते हैं? दीज आर डायएंथ्रोन ग्लाइकोसाइड्स, लीफलेट्स ऑफ Cassia angustifolia and Cassia equitifolia. Cassia angustifolia and Cassia equitifolia belongs to family Leguminosae. So senosides belongs to family, which family? Leguminosae family. और senosides का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? डायएंथ्रोन ग्लाइकोसाइड्स. ये ऑब्टेन फ्रॉम लीफलेट्स ऑफ Cassia angustifolia. और Cassia angustifolia बेसिकली कौन सी सेना होती है? इंडियन सेना. कौन सी सेना? इंडियन सेना, Cassia angustifolia. और वहीं पे Cassia equitifolia की जब बात करते हैं तो दिस इज अलेक्जेंड्रियन सेना. कौन सी सेना होती है? अलेक्जेंड्रियन सेना. तो ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है प्रोबेबली. जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे GPAT के लिए आप ऐसे फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम के लिए देते हैं तो डेफिनेटली पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेनोसाइड इज़ लीफलेट्स, सीड्स, फ्लावर्स
स्टेम, नॉन ऑफ द अबाव। तो फिर वहाँ पे आपका बेसिक जो मेन आंसर होगा वो दैट विल बी लीफलेट्स। लीफलेट्स ऑफ व्हाट? कैसिया एंगस्टिफोलिया इंडियन सेना एंड कैसिया एक्विटिफोलिया known as Alexandrian Senna. Belongs to which family? Belongs to Senosites. Belongs to सुनो जी, Senosites belongs to which family? तो Senosites belongs to Leguminosae family. Leguminosae family. Here we are. यहाँ हम पढ़ते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सेनोसाइड। लीजिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सेनोसाइड। तो हमने इसके लिए क्या करेंगे? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए सेनोसाइड्स के लिए सबसे पहले ड्राइड सेना लीव्स लेंगे। ड्राइड सेना लीव्स और उसका पाउडर, उसका चूर्ण बना लेंगे। और फर्दर दिस पाउडर, ड्राइड सेना लीव्स पाउडर को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ए बेंजीन सॉल्वेंट फॉर 2 to 3 आवर्स। 2 से 3 घंटे के लिए ड्राइड सेना लीव्स, जिसकी फैमिली है क्या? जिसकी फैमिली है लेगुमिनेसी। चाहे हम कैसिया एंगस्टिफोलिया को लीजिए, चाहे हम यहाँ पर कैसिया एक्विटिफोलिया के लीजिए। और कैसिया एंगस्टिफोलिया क्या है? इंडियन सेना। और वहीं पे कैसिया एक्विटिफोलिया, एक्विटिफोलिया एलेक्जेंड्रियन सेना है। कौन सी सेना है? एलेक्जेंड्रियन सेना। तो जब हम सेनोसाइड्स की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करते हैं तो क्या करते हैं? इसके लिए पहला स्टेप क्या होता है कि आप क्या करेंगे कि सेना लीव्स को क्या करेंगे? ड्राई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ड्राई कर लेंगे। और इसी ड्राइड सेना लीव्स को फिर हम क्या करेंगे? पाउडर बना लेंगे। उसको पीस करके क्या कराएंगे? चूर्ण बना लेंगे, पाउडर बना लेंगे। और इसी पाउडर को एक्सट्रैक्ट करेंगे फर्दर विद द हेल्प ऑफ ए विच सॉल्वेंट? विद द हेल्प ऑफ बेंजीन फॉर 2 to 3 hours. Further, mark is dried and extracted with methanol for 4 to 6 hours. Further क्या हो जाता है? अप टू द मार्क, मार्क को क्या कर जाते हैं? ड्राई कर लेते हैं। एंड एक्सट्रैक्ट इज फर्दर, फर्दर एक्सट्रैक्ट किससे करेंगे? एक्सट्रैक्शन किससे करेंगे? विथ मिथेनॉल फॉर 4 to 6 hours. फिर इसके बाद करेंगे मिक्स बोथ द एक्सट्रैक्ट एंड कंसनट्रेट दैट पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट। मीन्स हम क्या करेंगे? पहला एक एक्सट्रैक्ट था बेंजीन सॉल्वेंट के साथ, दूसरा मिथेनॉल के साथ, और दोनों को मिक्स कर दिया और कंसनट्रेट कर दिया। फॉर द pH ऑफ एक्सट्रैक्ट इज एडजस्टेड टू 3.2 बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मीन्स एक्सट्रैक्ट के pH को एडजस्ट करें, एडजस्टमेंट करेंगे अप टू 3.2, pH वैल्यू 3.2। कैसे एडजस्ट करेंगे? बाय द हेल्प ऑफ HCl, ताकि pH क्या हो जाए? एसिडिक इन नेचर रहे। एक्सट्रैक्ट इज मिक्सड विथ हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड इन 25 ml ऑफ डीनेचुरेटेड स्पिरिट। फर्दर एक्सट्रैक्ट को हम किससे मिक्स कर देंगे? हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के साथ इन 25 ml डीनेचुरेटेड स्पिरिट। तो pH is further adjusted to 8 using ammonia and set aside for 2 hours, which further results into the formation of a precipitate of sinusoids. तो pH को फर्दर हम 8 तक एडजस्ट कर देंगे। कैसे? बेस के साथ, यूजिंग अमोनिया, और एक जगह रख देंगे 2 घंटे के लिए, which further results in the formation of a precipitate of sinusoid. These are all the basic steps behind the industrial production of sinusoids. Is it clear? Here we are with the estimation of sinusoids.
तो सेनोसाइड्स को एस्टिमेट करने के लिए हम कॉलम C18 यूज़ करेंगे। मोबाइल फेज 1% एसिटिक एसिड इन वाटर एंड एसिटोनाइट्राइल 82 रेशियो 18 में रहेगा। फ्लो रेट विल बी 1 ml पर मिनट 1 ml पर मिनट और डिटेक्शन विल बी कैरीड आउट एट 350 नैनोमीटर। तो इस पे 350 नैनोमीटर एट वी स्पेक्ट्रोमेट्री। यूटिलाइजेशन ऑफ सेनोसाइड्स, तो जब सेनोसाइड्स की यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, यूज़ की बात करते हैं, तो सेनोसाइड्स बेसिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ constipation, treatment of constipation, in treatment of skin diseases, constipation, skin diseases, act as an anthelmintic agents। बेसिक और जो ऑब्जेक्टिव्स है टू यूज इन लॉस ऑफ यूजफुल इन लॉस ऑफ एपेटाइट, dysentery, indigestion, मलेरिया, जॉन्डिस, गाउट, रिह्यूमेटिज एंड एनीमिया। ये सारी चीज़ें द बेसिक यूटिलाइजेशन ऑफ सेनोसाइड्स इन ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशंस, इन स्किन डिसीजेस, एज एन एंथेल्मेटिक एजेंट, बेसिक यूजफुल इन लॉस ऑफ एपेटाइट, used in dysentery in case of indigestion of a food, malaria, jaundice, gout, rheumatiz and anemia. So here is artemisinin। तो आर्टेमिसिन बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? सेस्कोटर्पिन लैक्टोन्स obtained from the leaves and unexpanded flower heads of Artemisia annua family belongs to Asteraceae। Asteraceae means Artemisia annua के लीव से हम क्या ऑब्टेन कर लेते हैं? आर्टेमिसिन। और आर्टेमिसिन की फैमिली क्या है? एस्टरेसी। क्या है फैमिली? एस्टरेसी। ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड एक्सपैंड अनएक्सपैंडेड फ्लावर हेड्स ऑफ आर्टेमिसिया एनुआ बिलोंग्स टू फैमिली एस्टरेसी। सेस्कोटर्पिन लैक्टोन्स, आर्टेमिसिन में कौन सा लैक्टोन होता है? सेस्कोटर्पिन लैक्टोन। बेसिक डेरिवेटिव्स क्या होता है? सेस्कोटर्पिन लैक्टोन्स। कौन सी डेरिवेटिव्स? सेस्कोटर्पिन लैक्टोन्स ऑब्टेन फ्रॉम द लीव्स एंड अनएक्सपेंडेड फ्लावर्स हेड्स ऑफ आर्टेमिसिया एनुआ फैमिली एस्टरेसी। Here is an industrial production of artemisinin. How we will produce an artemisinin in industry? Fresh leaves are dried. Fresh leaves are dried below 60 degrees Celsius. After drying, जो लीव्स ड्राई हो चुका है तो उसका पाउडर बना लेंगे, चूर्ण बना लेंगे और फर्दर प्रीवियस जैसा हम क्या कर लेंगे, जैसे सेनोसाइड्स में किए थे कि पाउडर को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ भी पाउडर इज फर्दर एक्सट्रैक्टेड विथ मिथेनॉल by the help of maceration method. Methanol extract partitioned with hexane. मिथेनॉल जो एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्शन है, उसकी पार्टीशनिंग हेक्सेन सॉल्वेंट के साथ कर सकते हैं। आफ्टर पार्टीशनिंग विथ हेक्सेन सॉल्वेंट,
हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट करेंगे. हाइड्रो एल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इज कैरिड आउट partitioning with ethyl acetate until the colorless precipitate is formed. फिर जैसे ही कलरलेस प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, डेफिनेटली कंसनट्रेटेड दिस प्रेसिपिटेट एट कंट्रोल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम. Further, artemisinin is obtained as a fine white crystals after recrystallization with cyclohexene. Means जब हमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना है आर्टिमिसिन का, तो डेफिनेटली आर्टिमिसिन लीव्स के पाउडर, फ्रेश लीव्स को ड्राई कर लेंगे. एंड आफ्टर ड्राइंग पाउडर दैट मेक के पाउडर ऑफ दैट पर्टिकुलर लीव्स, extract this powder with the help of methanol by means of maceration method. Further partitioning करेंगे methanol extract with hexene. After this step, carry out hydroalcoholic extraction process to partition with ethyl acetate until the colorless precipitate is obtained. और जैसे ही कलरलेस प्रेसिपिटेट आ जाए तो कंसनट्रेट को क्या करेंगे, एट कंट्रोल टेम्परेचर अंडर वैक्यूम. ये प्रोसेस स्टेप करने के बाद हम देखते हैं कि आर्टिमिसिन इज ऑब्टेन्ड एज अ फाइन वाइट क्रिस्टल्स. Artemisinin is obtained as a fine white crystals after recrystallization with cyclohexene. Artemisinin का how we will estimate an artemisinin, HPLC and HPTLC method. Mobile phase normal hexane and ethyl acetate 7.5 ratio 2.5 volume by volume. And hexane, normal hexane and ethyl acetate 7.5 ratio 2.5 volume by volume. Stationary phase silica gel F254. Visualizing agent anishaldehyde sulfuric acid reagent followed by heating up to 110 degree Celsius. Anishaldehyde sulfuric acid reagent. आर्टिमिसिन की बेसिक यूजेस एंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो फोर्किस्कोलिन की तरह ये एंटी मलेरियल का भी काम करता है. फोर्किस्कोलिन में देखा था इट एक्ट्स एज एंटी मलेरियल, इट एक्ट्स एज एन एंटी ओबेसिटी, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट. सिमिलरली आर्टिमिसिन एक्ट एज एन एंटी मलेरियल एजेंट. इट इज़ यूज्ड इन गैस्ट्रिक इन्फेक्शंस एज ए एंटी कैंसर एजेंट. To suppress inflammatory immune reactions, artemisinin is basically utilized to suppress inflammatory immune reactions, utilized in gastric infections, act as an anti-malarial agent and an anti-cancer agent. डायोसजेनिन. तो डायोसजेनिन की बात करते हैं तो बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ डायोसजेनिन इज ए ग्लाइकोन obtained after the hydrolysis of steroidal saponin glycosides. Diosin present in Dioscorea deltoidea. Dioscorea composite belongs to family Diosgenin. डायोस तो क्या है, डायोसजेनिन, डायोस्कोरिएसी. क्या है, डायोस्कोरिएसी. डायोस्कोरिया डेल्टोइडिया एंड डायोस्कोरिया कंपोजिट
तो इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं इसकी फैमिली को। डायोस्कोरिएसी, डायोस्कोरिया डेल्टॉइडिया, डायोस्कोरिया कंपोजिट obtained from family Dioscoriaceae. Dioscoriaceae. It is a steroidal saponin glycoside, dioscine, present in Dioscorea deltoidea and Dioscorea composite. Belongs to family Dioscoriaceae. Belongs to family Dioscoriaceae. Here we are with the industrial production of डायोस्जेनिन। तो इसके लिए भी अभी तक हमने सेनोसाइड्स में भी देख लिया, आर्टिमिसिन में भी देख लिया कि हमने क्या कर दिया, पाउडर को ड्राई किया, पहले लीव्स को ड्राई किया। यहाँ भी पहले डायोस्जेनिन को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पाउडर फॉर्म में चूर्ण बनाने के बाद इट इज़ फर्दर हाइड्रोलाइज्ड विद 2.5 normal sulfuric acid by reflux or by autoclaving. Mark was washed with 10% sodium bicarbonate solutions to neutralize acid. Dried powder was hydrolyzed with 2.5 normal sulfuric acid by the help of reflux or autoclaving method. मार्क को हम क्या करेंगे, वॉश विथ, मार्क वॉश वॉश्ड विथ 10% सोडियम बाइकार्बोनेट टू न्यूट्रलाइज एसिड. हाइड्रोलाइज्ड पाउडर was extracted with benzene for 6 to 8 hours. हाइड्रोलाइज्ड पाउडर को क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया विद द सॉल्वेंट, विद सॉल्वेंट बेंजीन फॉर 6 to 8 hours. फर्दर द फॉर्मेशन ऑफ ए बेंजीन एक्सट्रैक्ट, और इस बेंजीन एक्सट्रैक्ट को क्या करेंगे, लास्टली फिल्ट्रेशन करेंगे। जो ऑब्टेन रेसिड्यू है उसको क्या करेंगे, ऑब्टेन रेसिड्यू इज फर्दर डिजॉल्व इन क्लोरोफॉर्म, और फर्दर क्या करेंगे, जो कंसनट्रेट ऑब्टेन हुआ है या जो प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हुआ है उसको फर्दर क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज कर देंगे। क्या करेंगे, रिक्रिस्टलाइज। हियर भी आर डायोस्जेनिन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे, HPTLC मेथड से करेंगे। मोबाइल फेज विल बी टोल्यून, इथाइल एसीटेट एंड फॉर्मिक एसिड। यहीं पे सिर्फ 3 चीज़ सॉल्वेंट आ रहा है, टोल्यून, इथाइल एसीटेट एंड फॉर्मिक एसिड। टोल्यून, इथाइल एसीटेट एंड फॉर्मिक एसिड 5:4:1। स्टेशनरी फेज सिल्का जेल F254। सारी चीज़ों में हम देख रहे हैं कि स्टेशनरी फेज क्या आ रहा है, सिल्का जेल F254। यूटिलाइजेशन ऑफ डायोस्जेनिन एज ए प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयडल सिंथेसिस, एज ए प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयडल सिंथेसिस used in preparation of oral contraceptives, used in preparation of oral contraceptives, used in treatment of rheumatiz, used in treatment of rheumatiz means जब डायोस्जेनिन की बेसिक यूटिलाइजेशंस की बात करते हैं तो डायोस्जेनिन इज़ बेसिकली यूज्ड एज ए प्रिकर्सर टू सिंथेसाइज स्टेरॉइड्स। ठीक है, used as a diosgenin is basically used as a precursors to synthesize steroid। और क्या होता है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, used in preparations of oral contraceptives, used in the preparation of oral contraceptives। और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, used in the treatment of rheumatiz, used in the treatment of rheumatiz मीन्स डायोस्जेनिन की जब बेसिक यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट ऑफ किस में, इन ट्रीटमेंट ऑफ rheumatiz। प्रिकर्सर किस में काम करता है, प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉयडल सिंथेसिस। स्टेरॉयड की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर्स का काम करेगा
रिहुमेटिज्म के ट्रीटमेंट में भी डायोजेनिन काम करेगा, और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के प्रिपरेशन में भी डायोजेनिन काम करता है. So these here we have discussed about forkiscolin, about sinusoids, artemisinin, डायोजेनिन. यहाँ पे हमने इन चारों ड्रग्स का फॉर्किस्कोलिन, सेनोसाइड्स, आर्टेमिसिन एंड डायोजेनिन, इनकी हमने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इनका एस्टिमेशन एंड यूटिलाइजेशन, ये सारी चीज़ों की स्टडी की. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस. और नेक्स्ट क्लास में हम डिगॉक्सिन, कैफीन के बारे में हम पढ़ेंगे. यहीं पे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करता हूँ. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.